Good evening. Hi, I'm Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today's scorecard of your written examination for IBPS PO is out. Now, after these scores are available, now a lot of discussion going on. Sir, my marks are just 1 mark above the cutoff, 2 marks are above the cutoff, 3 marks are above the cutoff, 4 marks above the cutoff. What is my chance of selection? Now, this is a very wrong interpretation, and this is very wrong way of analysis. When you start analyzing your fate or result linked with cutoff marks and your marks, it has no relevance. First thing you have to understand, the moment you are shortlisted for interview, you are among us the few candidates those are under consideration of the management for selection. Effectively, lot of candidates will get the selection because vacancies are large, number of candidates appeared in interviews are limited, and out of this lot only final selection will happen. So any person who has crossed the cutoff has a chance of selection. There is no need of discussion how much marks above the cutoff in written will ensure you success. The major game changer is always interview marks. And in interview, the marks are so given, there is a lot of gap between one candidate and another. So if a candidate is able to score high marks in interview or performed well in interview, he or she is in race. So stop this discussion, stop demotivating a discussion that, sir, my marks are 1, 2 or 3 above the cutoff, I have lost the chance, I may not be selected. This is all based on non-logical discussion. I have seen people, those who are at just cutoff and got the final selection and now working in bank as probation officer. So hope is alive for everyone. Anyone who has appeared for the interview has a good chance that he or she may be selected because the number of selection will depend upon number of vacancies. And I anticipate in last minute vacancies will rise. Most banks are short of staff. Many banks are still figuring out their figures, how much vacancies they should ultimately announce to the IBPS. Some people are getting discouraged by getting the data out of RTIs. RTIs are historical data. Don't get bogged down by the data that is emerging out of RTI. That may give some hint, but not the actual figure. Every year, the actual vacancies are much different than the vacancies those were already declared. So this year will not be different. This year again, you will see the actual vacancies are much different than what you are thinking. And I am confident that vacancies are more. Why? Because most banks are reeling under staff shortage and they will requisite good number of vacancies just before the result. So hopes are alive. Don't get unnecessarily depressed. Don't get unnecessarily hurt by seeing the marks of others. Everyone who has appeared in an interview has a chance to be selected. Be cheerful. Okay? The odds are equal and the chances are also equal. The unnecessary discussion that this much number of marks above cutoff makes you safe has no logic at all. Yes, written marks plays a role, but sir, you can very easily cover this in interview. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। IBPS PO के स्कोर्स आज आउट हो गए और मैंने अभी कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने देखा कह रहा है मेरा 1 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, कोई 2 ज़्यादा है, कोई 3 ज़्यादा है, कोई 4 ज़्यादा है, कोई 5 ज़्यादा है। सर मैं तो डिप्रेस हो गया, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। इन सब बातों का कोई मायना नहीं है। जो भी व्यक्ति इंटरव्यू दे के आया है उसका सिलेक्शन का चांस है।
इररिस्पेक्टिव उसके कितने नंबर कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ऊपर है। मैंने देखा है हिस्टोरिकली ऐसे लोगों को सेलेक्ट होते हुए जिनके जस्ट कट ऑफ में मार्क्स थे, पर इंटरव्यू में अच्छे नंबर होने की वजह से वो अल्टीमेट सिलेक्शन ले गए। तो इसलिए जो भी इंटरव्यू दे के आया उसको अपनी होप अलाइव रखनी चाहिए। वैकेंसीज काफ़ी हैं, काफ़ी लोग सेलेक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यू में गए नहीं हैं। चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। जो कई लोग होते हैं कहीं ना कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, रिटर्न दिया होता है, रिटर्न पास भी हो जाता है, इंटरव्यू देने ही नहीं जाते। कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गए, कई लोग पूरे पेपर नहीं सबमिट कर पाए उस दिन। तो एक्चुअल रेशो क्या निकल के आएगी ये कहना संभव नहीं होता। वैकेंसीज काफ़ी होंगी, मेरा अभी भी अनुमान यही है कि हर बैंक में स्टाफ शॉर्टेज है और लास्ट मिनट पर्क ऑफ वैकेंसीज में आएगा ही आएगा। कई लोग आरटीआई की फिगरें देख देख के परेशान हुए जा रहे हैं, उसका कोई मायना ही नहीं है। पिछले कई सालों का आप रिजल्ट देख लीजिए, जो डिक्लेयर्ड वैकेंसीज हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसमें बहुत चेंज होता है। तो अभी से ये मान लेना कि कितनी वैकेंसीज होंगी इसकी कोई अर्थ नहीं है। सबकी होप अलाइव है। असली लॉटरी आपकी खुलेगी 1 अप्रैल को और तब तक कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है मैं पास ही नहीं होऊंगा और उनका नाम होता है। अभी भी आप देखो ना, प्री के अंदर मैंने कहा प्री का देते ही आप मेन की तैयारी शुरू कर लो। कई लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की, अचानक प्री पास हो गया, और जिन्होंने कहना मान के पढ़ाई शुरू कर दी थी उनको फ़ायदा रहा। ऐसे ही जब मेन का रिजल्ट आना था तब भी मैंने कहा था आप जो कुछ भी करके आए हैं निश्चिंत होकर आगे की तैयारी करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। अब कई लोगों ने उस कहने को माना, कईयों ने नहीं माना, और बाद में कई लोग जिनको उम्मीद नहीं थी मेन पास होने की उनका भी मेन पास हो गया। तो रिजल्ट के अंदर पहले से एंटिसिपेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर है खाली उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो आपके फेलो कोलीग्स हैं, जो आपके साथ compete कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कैसा हुआ, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। मान लो एक के आपसे ज़्यादा नंबर है रिटर्न के अंदर, मगर इंटरव्यू आपका ज़्यादा बेटर हुआ है, आपका एग्रीगेट स्कोर उससे ज़्यादा हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं कि बहुत नीचे तक के लोग भी क्लियर हो जाते हैं। तो अभी तो आपको पता ही नहीं है कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। मैंने भी एक आंकड़ा दिया हुआ है और मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जो मैं बैंकों में हालात देख रहा हूँ, जो बैंकों के अंदर स्थिति देख रहा हूँ, जितनी स्टाफ शॉर्टेज है, तो मैनेजमेंट्स अल्टीमेटली नहीं लेंगे स्टाफ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि मैं तो जो फीडबैक है लोगों की जो बात करता हूँ मैं स्टाफ से, इतने लोग मेरे जानकार हैं बैंकिंग में, उसके बेसिस पे ही मैं बात करता हूँ आपसे। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत लोग पास होंगे और किसी को भी अभी से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर देख के तो बिल्कुल भी आप असेस मत करिए कि आपका होगा कि नहीं होगा। मैंने बहुत कैंडिडेट देखे हैं जिनके जस्ट कट ऑफ है, वो भी अल्टीमेटली बैंक में सेलेक्ट हुए और आज प्रोबेशनिंग ऑफिसर की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कितने नंबर ज़्यादा होंगे तभी मैं सेफ हूँगा, कोई सेफ वेफ कंसेप्ट नहीं होता है इसके अंदर। आप लोग पूछते हो कि सर सेफ बता दो, सेफ बता दो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप बिल्कुल चैन की नींद सोइए और 1 अप्रैल को लॉटरी के खुलने की इंतज़ार करिए, और ईश्वर ने चाहा आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये चैनल बहुत लकी है, बहुत लोग पास हो चुके हैं। 25,400 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आज बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी कार्यरत हैं। आप भी उन लोगों में से होंगे जो मुझे 1 तारीख को बताओगे सर मेरा हो गया, आई एम कॉन्फिडेंट। तो आप क्यों नहीं हो कॉन्फिडेंट? चीयरफुल हो जाइए, खुश हो जाइए, और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चैन की नींद सोइए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।